Good morning, my dear students. Today in this mathematics, I am just going to start the last topic of statics chapter. This is median, because about mean and mode I have already discussed. Now I am going to start median today. So in today's topic, see median of group data. So first of all, we have to define median. What is median? Median is defined as the middlemost or the central observation when the observations are arranged either in ascending or descending order of their magnitudes. जो क्लास इंटरवल्स हम लोग बनाते हैं ऑब्जर्वेशंस में, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे. मीडियन डिवाइड्स द अरेंजमेंट सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है. दैट इज 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाई बिलो द मीडियन एंड रिमेनिंग आर एबव द मीडियन. जहाँ पे मीडियन होगा उससे ऊपर और नीचे 50% ऊपर होंगे, 50% नीचे होंगे. Let n be the total number of observations and let they are arranged in ascending or descending order. उसको सजाया गया है ascending या descending order में. Then median of the data depends on the number of observations. मान ले number of observations n है. Then median is equal to value of n plus 1 by 2th observation. यानी n plus 1 by 2th observations में जो भी वैल्यू आएगा वो median कहलाएगा. As for example, if 5 girls of different heights are made to stand in a row in descending order of their heights, then the height of the third girl from either end is the median height. Since n is equal to 5 is odd, so median is equal to 5 plus 1 by 2 is equal to third observation. So third one is median. Now we take case 2. Case 2, if n is even, अगर n even हो तब क्या होगा? Then median is equal to mean of the value of n by 2 at observation and n by 2 plus 1th observations. So this is half the value of n by 2th. 1 by 2 कॉमन ले लेते हैं. n by 2th plus n by 2 plus 1 कॉमन नहीं है, मतलब हम लोग चूंकि 2 डाटाज हैं इसलिए दोनों का मीन निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे. एक एग्जाम्पल है, एज फॉर एग्जाम्पल, इफ 6 गर्ल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर मेड टू स्टैंड इन अ रो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, देन द मीन हाइट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ गर्ल आर either from either end is median height. So n by 2 is equal to 6 by 2 is equal to third observation and n by 2 plus 1 मतलब हो गया 3 plus 1 यानी कि fourth observation. So median is equal to mean of third and fourth observations, यानी दोनों के height को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. Now we have example. Find the median of the first 10 prime numbers. अब 10 प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29. तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 है, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू 1 by 2 वैल्यू ऑफ n by 2th एंड n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशंस. और ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ गया है 12. सो 12 इज द आंसर. नाउ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं पहले ये भी जान लें हम लोग. द फ्रीक्वेंसी ऑफ an observation in a data refers to how many times that observations occur in the data. कितने बार वो आया है किसी particular observations में. So cumulative frequency is defined as the it is given collective sum of the frequencies. So cumulative frequency can also be defined as the sum of all the previous frequencies up to the current point. The cumulative frequency is usually observed by कंस्ट्रक्टिंग cumulative frequency table. कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे हम लोग. So
फॉर्मेशन ऑफ cumulative frequency table can be understood with the help of an example. इसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, इसमें तुम्हारा एज दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और फ्रीक्वेंसीज दिए गए हैं 3, 18, 13, 12, 7 एंड 27। तो इसको डाटा में बनाते हैं, सबको ऐड करते चले जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसीज का एडिशन इसमें हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। फॉर्मेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब फिर से एग्जांपल्स देते हैं। तो यहाँ पर कंसीडर अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ इसमें है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे फ्रीक्वेंसीज दिए गए हैं। अब इसमें फॉर्म द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, दोनों इसी से बनाना है। अब देखिए इसमें है, पहले हम लोग आते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप में क्या करते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड 100 दिया गया है। और सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे, 5, 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, ऐसा ऐड करते चले जाएंगे। तो हियर 10, 20, 30 ये सारा 100 तक आर द अपर लिमिट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स। जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं ये सारे का अपर लिमिट्स हैं। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप निकालना हो, सो फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी मेक द टेबल ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्कोर्स दिया हो या कुछ दिया हो, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लोअर वैल्यूज देते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ टेबल में यहाँ पे, है ना, मोर देन 0 उठाते हैं 0 से, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसके 100 चलाएगा और 90 से ऊपर वाले में। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार सबसे हाईएस्ट जो फिर हमारा है 100 वाले में 58, सबको ऐड करने पे आया 58। उसके बाद फर्स्ट वाले को माइनस करते चले जाएंगे, 58 - 5, 53 ऐसे करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कि हियर 0, 10, 20, 30 से लेकर 90 ये सारे क्या है, लोअर लिमिट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स। उसमें लेते हैं अपर लिमिट, इसमें लेते हैं लोअर लिमिट। यानी मोर देन टाइप में लेंगे हम लोग लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे और लेस देन टाइप में हम लोग अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 में एक दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोर देन टाइप। सो यहाँ पर दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 ये सब कुछ दिए गए हैं। और यहाँ दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है 30, 23, 8, 2 ये सब दिए गए हैं। चेंज द एबव डाटा इनटू अ कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर पहले 5 to 10 दिया गया, 10 to 15 दिया गया, 15 to 20 हम लिए। और फर्स्ट वाले में हम लोग बना रहे हैं कौन सा, मोर देन टाइप, इसलिए लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसीज आए हैं 30 है, सो 30 में से 23 माइनस करेंगे 7, फिर 23 से माइनस करेंगे 8 तो आएगा 15, और 15 से 2 माइनस करेंगे तो ये 15 आ गया। और फिर यहाँ 8 में से 2 माइनस किए 6 और ये फिर 2 है। सो मोर देन और इक्वल टू 20, यही 20 तक ही हम लोग गए हैं, ये सब कुछ लिख दिया गया है। यानी क्या किए हैं, पहले में 30 से 23 माइनस किए तो 15 से फिर 15 और फिर 8 है तुम्हारा, 8 से 2 माइनस किए 6 और फिर लास्ट में 2 हमारा वो 2 लिख दिया गया। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, सब कुछ दिया गया है। राइट द एबव डिस्ट्रीब्यूशन एज लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डालना है। तो लेस देन टाइप में आएंगे तो लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160 ऐसा करते चले जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ये कौन सा, ये वाला दिया हुआ, ये सारे दिए गए हैं, वो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले 12 का 12 लिखा गया, 12 है तो यहाँ से 12 का 12 लिखा गया, ये 12 है तो 12 लिखा गया यहाँ पे। फिर 12 + 14 कर दिया गया तो 26 आ गया।
26 8 ऐड किया 34, 34 प्लस 6 40 और 40 प्लस 10 हो गया 50। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं मीडियंस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। क्या है डिस्क्रीट सीरीज पर ये देख ले। अ सीरीज हैविंग ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 ये सब कुछ xn है विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट 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 fn इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। यानी तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस दिया गया है और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दिया गया है, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। अब मेथड्स टू फाइंड द मीडियंस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज कैसे निकालते हैं तो वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फर्स्टली वी अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, then we find the cumulative frequency of all the observations. Let n be the total number of observations. So sum of the frequencies, let n be the total number of frequencies, total number of observations, sum of the frequencies, then median of the data depends on the number of observations n. इफ n इज ऑड, अगर n हमारा ऑड है, क्या है हमारा n अगर हमारा दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ से दिखाई देगा आप लोगों को, हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों को अच्छा से दिखाई दे सब चीज। सो इफ n इज ऑड देन मीडियन वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1/2, हम लोगों ने पीछे भी देखा था इस चीज को। एंड इफ n इज इवन देन मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ n/2th एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस। फिर हाफ लेते हैं, दोनों को हम लोग ऐड करके निकालते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल 6, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक सब कुछ डाटा दिया गया है, यहाँ मार्क्स सब कुछ दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर CF मतलब होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 12, 12 ये से 9 ये वाला है, 9 प्लस 3 12 ऐसे निकालते चले जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर n हमारा आ गया 33, सो मीडियन इज इक्वल टू n 33 मतलब ऑड है, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू 33 प्लस 1/2 यानी हमारा कौन हो गया 17th ऑब्जर्वेशंस। सो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 17th, अगर 17th में कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू चले जाए तो हमारा आंसर कितना आता है, आंसर इज 28। यहाँ देखो सामने में क्या है 28 है, सो 28 इज द मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट में एग्जाम्पल 7 में है ऑब्टेन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस टेबल। सो x ये सारे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है ये सारे हमारे क्या है फ्रीक्वेंसीज हैं। सो यहाँ पर पहले सजाएंगे इसको हम लोग, ये हमारा ऑब्जर्वेशंस हो गया xi, fi हमारा फ्रीक्वेंसीज हो गया, cf निकालने के लिए 8, 8 प्लस 10 18 ऐड करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 120 इवन है, सो मीडियन इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस। ये 120/2 और 120/2 प्लस 1 इस सबको ऐड करने पे हमारा आता है कितना, आ गया बोथ 60th एंड 61th ऑब्जर्वेशंस लाई इन द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 65 एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 65। हम देखेंगे 65 के सामने में क्या है 5, सो 5 इज द मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल टू 1/5। देखो 61th में क्या है, 61th में हम लोग चले जाते हैं तो ये इसके बाद ही आएगा, दोनों में 5 ही आ रहा है। 61th में भी 5 है और हमारा 60th में भी 5 है। सो हमारा 5 जो हमारा हो गया ये हमारा मीडियन वैल्यू हो गया। यानी 65 के सामने इसी में 60 भी है और 61th है, इसके सामने 5 आ गया तो दोनों 5 को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। सो मीडियन इज 5। अब है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। So in a grouped data we may not find the middle observations by looking at the cumulative frequencies. केवल cumulative frequencies से हमारा निकलेगा नहीं, since the middle observations will be some value in a class interval. So it is necessary to find the value inside a class that divides the whole distribution into two halves. For this we find the cumulative frequencies of all the classes and n/2 in number of observations. Now locate that class and cumulative frequency is greater than and nearest to n/2 and this data is called median class, जो हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। After finding the median class we use the following formula for calculating median.
अब ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, बिना इस फार्मूला के आंसर नहीं, मीडियन नहीं बनेगा। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये दिया गया है। इस फॉर्मूला का यूज करते हैं मीडियन निकालने के लिए। अब एग्जाम्पल से भी देखेंगे इसको हम लोग, देखिए एग्जाम्पल से भी देखेंगे हम लोग। यहाँ आ रहे हैं हम लोग, ये L क्या है, यहाँ पर L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N जो है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, CF हमारा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H हमारा है क्लास विड्थ, एज्यूमिंग द क्लास साइज टू बी इक्वल, यानी सारे क्लास का क्लास जो है वो क्लास साइज इक्वल हो। अब एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर है 200 सर नेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, ये सब दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, जिससे 0 से 5 के बीच में हमारा आ गया 20 नंबर ऑफ सरनेम्स हैं। 5 से 10 अगर ले तो 60 सरनेम्स हैं, 10 से 15 में 80 सरनेम्स हैं, 50 से 20 में 32 और 20 से 25 में हमारे 8 हैं। मीडियन निकालना है वेब डाटा का, तो यहाँ 0 से 5 सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोग CF निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 20 का 20 है, 20 प्लस 60 80, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। N हमारा है सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने पर आया 200, n/2 हमारा होगा 100। अब सिंस द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन 100 इज 160, 100 से ऊपर आते हैं तो 160 यहाँ पे हमारा है 160, एंड द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, इसके सामने का क्लास इंटरवल हमारा है 10 to 15। सो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 10 to 15, इसका लोअर लिमिट 10 है, सो L इक्वल टू 10। CF क्लास इंटरवल इसके जस्ट पहले वाले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 80 है, H हमारा क्लास साइज दोनों का डिफरेंस है 5 और फ्रीक्वेंसी 80 है, इसका फ्रीक्वेंसी है 80 F। सो मीडियन निकालने के लिए सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आया 11.25, ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 बॉयज ऑफ क्लास X 10, क्लास 10 है, of a school was conducted and the following data was obtained. अब less than 140, less than 145, less than 150, less than 155, less than 160, 165, यह सारा नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं, 4, 11, 29, 40, 46, 51, ये सब कुछ दिया गया है। तुम लोग कर्व नहीं बनाना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। टू कैलकुलेट द मीडियन हाइट वी नीड टू कन्वर्ट द गिवन डाटा इन कंटिन्यूअस ग्रुप इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्लास इंटरवल तैयार करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंटरवल 5 का है, इसलिए हम लोग बिलो 140 लिखते हैं पहले, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लिखेंगे बिलो 140, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, ये सब लिखेंगे हम लोग। 4 लिखेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 11 वाला में से 4 माइनस करेंगे 7, 20 से हमारा 29 से 11 माइनस करेंगे 18, ये करते चले जाएंगे। यहाँ पर n हमारा सबको ऐड करने पे 51 आया, लास्ट में ये और इस सब का एडिशन सेम है, तो n इक्वल टू 51 आ गया। अब n/2 इक्वल टू 51/2 मतलब 25.5, सिंस द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 25.5 इज 29, इससे बड़ा क्या है 29 है, इसलिए क्लास इंटरवल हमारा जो मीडियन क्लास है 145 to 150 होगा। सो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 145, F हमारा फ्रीक्वेंसी, CF और H मालूम, सबको पुट करके निकालेंगे तो आएगा 149.03, ये हमारा हो गया मीडियन। और एग्जांपल 10 है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहाँ पर n यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है 100 एंड मीडियन दिया है 32, सब मीडियन दिया गया है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मीडियन 32 है, n यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिए गए 100, F1 F2 मान लो ये दोनों दिया हुआ है, F1 ये F2 है, विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल इतना इतना का दिया हुआ है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 100 है, यानी सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, साथ में F1 F2 को ऐड करेंगे तो आएगा 100। अब F1 प्लस F2 सारे को ऐड करके उस तरह भेजेंगे तो F1 प्लस F2 हो जाएगा 100 माइनस 75 यानी 25, तो F1 प्लस F2 हो गया 25, इसलिए F2 इज इक्वल टू 25 माइनस F1, ये हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। नाउ द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20 सब कुछ दिया गया है, फ्रीक्वेंसीज भी दिया गया है। जो जो हमारा वैल्यू आया सब लिखते चले गए हम लोग। 10 + f1, 10 + f1 ये हो गया। फिर इसको और इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सब ये हमारा CF निकलते चला गया। यहाँ पर n 100 है इसलिए n/2 50 हो जाएगा। 50 किस में जाएगा, यहाँ 65 है, यानी ये हमारा क्लास इंटरवल हमारा ये 35 प्लस ये f1 है। सो मीडियन इक्वल टू 32 पहले से क्वेश्चन में दिया है, यानी 32 इसके पहले वाले में चला जाएगा, है ना। 32 सो विच बिलोंग्स टू द क्लास इंटरवल 32 40। अच्छा ये चला जाएगा, मीडियन कितना 32 है ना, तो 32 तुम्हारा चल जाएगा किसमें, मीडियन इज गिवन एज 32। सो विच बिलोंग्स टू 30 to 40, 30 to 40 के बीच में ही मीडियन आएगा। सो द मीडियन क्लास इज 30 to 40। सो एल हमारा लोअर लिमिट 30 हो गया, हमारा क्लास साइज 10 है, फ्रीक्वेंसी दिया है 30, CF दिया है 35 प्लस f1 इसके पहले वाले का। सारे का वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करने पर हमारा निकलेगा f1 निकल जाएगा 9। अब हमारा f2 हमारा है क्या 25 माइनस f1, तो 25 माइनस 9 यानी 16 हो गया। इसलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 का वैल्यू 9 और f2 का वैल्यू आ जाएगा 16। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया। नाउ आई विल गिव यू सम 4 क्वेश्चंस टू सॉल्व। ओके।